Sum number 8 ले लो सब लोग. It's a continuation of current account problems we started with yesterday. Okay. So you got capital as well as current. So how many accounts you need to make it sum number 8? How many accounts? Sum number 8. 3 accounts or 4 accounts? 4. 4 accounts. Okay. 4 accounts. That is 4 accounts in problem number 8. What are the 4 accounts? You got same 3 accounts, realization, cash and capital. One more extra account, that is partners current. Okay. और कौन सा बड़ा बनाना है इसमें, कैपिटल या करंट? Current. Current account would be bigger than capital because all the adjustments now will be doing in all the adjustments would be done in current account. Okay. सबसे पहला it is fixed capital method, fluctuating capital नहीं है, fixed capital है. तो आपको सब changes जो है करंट अकाउंट में करने, दैट इज नंबर 1 थिंग. और हमने कल देखा था लास्ट लेक्चर में करंट अकाउंट को बंद कैसे करना है. हाउ डू यू शट डाउन द करंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन? हाउ विल यू क्लोज डाउन करंट अकाउंट डिसॉल्यूशन में? Transfer it to capital. ट्रांसफर इट टू कैपिटल. एब्सोल्युटली ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट, एकदम करेक्ट है. करंट का बैलेंस कैपिटल में और कैपिटल का बैलेंस बैंक, बराबर. करंट गोज टू कैपिटल एंड कैपिटल गोज टू बैंक. We are doing sum number 8. Partners are law and luck. Law and luck. Sorry, what? Journal for the seventh sum. नहीं है, 7th sum में कोई नो जर्नल 7th sum. इसमें भी कोई जर्नल है, 8th वाले में भी. 8th one भी there is no journal. But market important, star mark करना. Current account का important sum है, sum number 8. Sir, how many sums did we do last time? Last lecture we did 2 problems. एक का जर्नल किया था और 2 पूरा प्रॉब्लम. Any of it contains a journal? हाँ, फर्स्ट वाले में ही फर्स्ट मतलब 2 सम का जर्नल किया था, 6th सम और 5th और 6th दोनों का जर्नल. 5th का सम हो चुका था, जर्नल किया था, और 6th का सम प्लस जर्नल. वीडियो नहीं देखा, एब्सेंट थे तो भी सब देखना है, जाने दो ना, क्या कर. हो गया, 1-2 लेक्चर मिस हो गया तो क्या फर्क पड़ता है ना. नहीं, फुल मार्क्स तो लाने का नहीं. आज चालू किया था पर करूंगा सर, आगे देखना. कैश और बैंक अकाउंट कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, बैलेंस कहीं पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है. ओके, बैलेंस शीट में एम्प्टी है, तो यू कैन राइट कैश स्लैश बैंक. बैंक बैलेंस को नील कर सकते हो, टू बैलेंस बीडी इट इज नील, 0 बैलेंस दिखा सकते हो. ओके, no balance given of cash and bank, so you can write cash slash bank and make the opening balance 0 nil. The books of law and luck. What?
यूजुअली रहता है ना ऑलवेज थोड़ा बैलेंस. ऑलवेज मेजॉरिटी ऑफ द सम रहता है. आज सम एडमिशन रिटायरमेंट में भी किया था, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नील था. कभी कभार हो सकता है बैलेंस शीट में नहीं दिया तो नील कर दो. आएगा ना पैसा, रियलाइजेशन, एसेट बेचोगे तो पैसा आने ही वाला, टेंशन वाली बात. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप? कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसोल्यूशन हो, स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको? एम्प्टी द बैलेंस शीट. ओके, एडजस्टमेंट्स बाद में पढ़ेंगे हम लोग. पहले जो बैलेंस शीट है उसके आइटम को ट्रांसफर कर दो हर एक जगह पे, स्टार्टिंग विथ कैपिटल एंड करंट. सबसे पहला कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है तो स्टार्ट विथ कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी से शुरू करो. लॉ इट इज 11,000, लक इट इज 8,000. बराबर है. write down the capital balance, then the current account balance. current account में current account का लिख दो by balance PD. But are both the partners having credit balance? Just check. All of you check. No, Luck has a debit Luck balance. has debit balance on the asset side. Okay, asset मतलब debit balance, liability मतलब credit balance. All liabilities have credit balance, all assets have debit balance. So current account of Luck is on the debit side, law is on the credit side. So law का आएगा by balance BD 2,000 and luck का आएगा to balance BD 1,000. Okay. Then we can see reserve on the liability side, a second last item from bottom. You can see reserve. What are you supposed to do with reserves? Distributed. You will distribute it, right? But to which account? Capital or current? Current. Current. All the adjustments now you have to make through current account. बराबर है? So by reserve account, this would be 1,000. And what is the profit sharing ratio between law and luck? Check karo. They are equal partners. Equal part. Equal partners मतलब 1:2. That would be 500, 5. 500, 5. बराबर है? और आपको मिलेगा P&L account on the asset side. Can you see P&L account on the asset side? So it will go in debit. It will go on the debit side to P&L account. Accumulated profit, accumulated losses, दोनों देखने हैं. एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में भी होते हैं. सेकंड सम में डाले थे, काफी लोग ने मिस किया है. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग. accumulated profit और accumulated loss भी हो सकता है एसेट साइड पे, so need to be alert. So to P&L account 6,000, that would be divided as 3,000 and 3,000. लेकिन सब कुछ करंट में कर रहा हूँ मैं, कैपिटल में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. All the changes in current, okay, all the adjustments in current. अब जो भी बचे हुए एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो कहाँ ट्रांसफर करने हैं आपको? Sorry, realization account. Realization, right? Realization. So go to realization and transfer the remaining assets and liabilities. Sir, is it necessary to write to balance BD nil in cash/bank account, or if we don't write, is it fine? It is fine, even if you don't write to balance. Nil amounts नहीं लिखोगे तो चल. मुझे बताओ, assets will be transferred on which side and liabilities on which side of realization? बोलो. Assets on debit and liability. Assets on the debit side and liabilities on the credit side. Is this clear? Assets on the debit side and liabilities on the credit side. Keep that in mind. Assets on the debit side and liabilities on the credit side of realization. Assets को करना है debit में और liabilities को करना है credit. So let's start by transferring the assets one by one. सबसे पहला आएगा to sundry assets account.
सब कुछ बैलेंस शीट से कॉपी करना है। मतलब आप क्या कर रहे हो, सब एसेट अकाउंट को एक एक लेजर बंद कर रहे हो, सब में बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, और एसेट्स अकाउंट अपना रियलाइजेशन अकाउंट में 2 एसेट्स, वन बाय वन ऑल द एसेट्स वी आर ट्रांसफरिंग। ये मशीनरी गया 2000 का, ये फर्नीचर गया 1000 का, ये गुडविल गया। गुडविल को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है रियलाइजेशन सॉल्यूशन, जो एसेट है वैसे के वैसे छाप के लिखना है। फिर आपका अगर नसीब हुआ कोई आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा है तो आपको गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा, यू विल गेट कैश फॉर गुड। बट अगर आपका कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई टेक ओवर नहीं कर रहा है, तो गुडविल का वैल्यू 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको टेंशन वाली लेने की कोई बात ही नहीं है गुडविल में। गुडविल इज ट्रीटेड एज नॉर्मल एसेट लाइक एनी अदर एसेट इन डिसॉल्व। ओके, कोई केस नहीं है जैसे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में थे केस 1 2 3 4, उधर तो लेके आते थे, पे ऑफ करते थे, इधर कोई लफड़ा नहीं। जैसे फर्नीचर ट्रीट करते हो, जैसे मशीनरी ट्रीट करते हो, वैसे ही गुडविल को ट्रीट करते हो। ठीक है, गुडविल का कोई सेपरेट स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। Goodwill 2000 as it is. Debtors also you transfer 12,000. There is no RDD. Closing stock you transfer, that is 7,000. Profit and loss we have already distributed, तो वापस मत कर देना। करंट अकाउंट ऑलरेडी करंट अकाउंट बैलेंस चला जाएगा। तो इतने ही एसेट है आपके पास। व्हाट इज द टोटल? 24,000। 24। वैसे ही लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। कैपिटल आपने ऑलरेडी लिख दिया है, करंट अकाउंट आपने ऑलरेडी लिख दिया है। क्रेडिटर्स इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी विच यू नीड टू पे ऑफ, सो ट्रांसफर इट। क्रेडिटर्स में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर्स। रिजर्व आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वापस मत कर देना। And bills payable. Bills payable are 5. 5 plus 4, that is 9. So 9,000 के liabilities, 24,000 के assets, everything you have transferred to realization. एक बार cross check कर लेना, every account must have been closed and transferred. Have you done that? Capital open कर लिया, reserve transfer किया, assets liabilities transfer कर दिए। अब आप एक्चुअल प्रोसेस पे जाओ, रियलाइजेशन की एक्चुअल प्रोसेस पे जाओ। व्हाट आर द अदर 2 स्टेप्स ऑफ रियलाइजेशन? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? टेल मी। Sale of the asset and paying off the liability. सेल ऑफ एसेट एंड पेइंग ऑफ लायबिलिटी। ओके, सेल के साथ टेक ओवर भी आ सकता है, तो सेल और टेक ओवर विल गो हैंड इन हैंड। सेल एंड टेक ओवर विल गो हैंड इन हैंड। सेल टेक ओवर ऑफ एसेट या पेमेंट टेक ओवर ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो पहले एसेट सेल। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? नाउ यू शुड ऑल नो what is the journal entry for sale of asset over here? Bank to realization. Bank to realization. Okay, 8 बार हम कर रहे हैं, 7 times you have done the same thing. It is bank to realization, not bank to asset. Assets have been transferred to realization. So bank to realization, bank में आएगा to realization, और realization में आएगा by bank. बैंक में आएगा टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में आएगा बाय बैंक। ठीक है, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मच मनी वर वी एबल टू रिकवर फ्रॉम द एसेट्स। नाउ यू रीड द एडजस्टमेंट्स, नाउ यू रीड द एडजस्टमेंट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट। द कलेक्शन चार्जेस वर 10% ऑन टोटल डेटर्स. Debts were 10% of total debtors were proved to be bad. मतलब बेसिकली डेटर्स से आपको पैसा कितना मिला वो बोलो। 10,800. कितना? 10,800. Sir, 10% है। 10% तो कलेक्शन चार्जेस है, और 10% क्या है? But then, sir, collection charges are Collection charges we will get, right? कलेक्शन चार्जेस, सॉरी, We'll pay or we'll get. कलेक्शन चार्जेस का कैसा होता है? सपोज आप डेटर से पैसे कलेक्ट करने गए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, कम्युनिकेशन का खर्चा हो गया, कोई ऑफिस का सैलरी हो गया एम्प्लॉय का,
तो ये सब को बोला जाता है कलेक्शन चार्जेस। तो कलेक्शन चार्जेस का कोई सेपरेट एंट्री नहीं होता, वो आपके डेटर के कलेक्शन से माइनस हो जाता है। आपको डेटर से 12,000 लेना था, 10% आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह में खर्चा हो गया उधर ही, तो आपको हाथ में कितना मिला? तो 10,800 डायरेक्ट यू डिडक्टेड फ्रॉम द कलेक्शन अमाउंट ऑफ डेटर। गॉट इट? नो सेपरेट एंट्री फॉर। अच्छा, उसके बाद आपका आता है 10% ऑफ टोटल डेटर्स वेर बैड। बैड मतलब बैड डेट हो गए। तो बैड डेट हो, चाहे कलेक्शन चार्जेस हो, चाहे आपका ये हो डिस्काउंट अलाउड हो, ये सब डेटर के टोटल कलेक्शन में से माइनस। अपने को नेट में देखने का कितना पैसा हाथ में आया, समझ आई? Sure. 1 मिनट। सो 10% ऑफ टोटल डेटर्स वेर कलेक्शन चार्जेस, तो वो माइनस किया, एंड 10% ऑफ टोटल डेटर्स वेर बैड डेट। टोटल डेटर्स दिया है, टोटल, बैलेंस नहीं, टोटल डेट। तो टोटल डेटर्स का 10% कलेक्शन चार्जेस, टोटल डेटर्स का 10% बैड डेट, दोनों का 10% हटाओ, कितना हटाओगे? 20%। तो 20% आपके कम हो गए, तो हाथ में कितना मिला आपको? 9600. 96। 1,600. यस, बोलो Sir, but still I had a doubt. Sir, collection charges means we might have appointed someone who was collecting the money from all the debtors. So that should be our expense, right? नहीं, तो वो why are उसका we जो writing कलेक्शन it? चार्जेस है ना, वो तो डेटर से हाथ में कम पैसा है। आपने जिसको अपॉइंट किया है उसकी फीस आप दोगे, या उसका रेम्यूनरेशन आप दोगे, दैट इज योर एक्सपेंस, दैट इज द पार्ट ऑफ रियलाइजेशन। Okay. जो उसकी Okay. फीस और रेम्यूनरेशन होगी ना वो बंदे की मिडल में, वो आपका रियलाइजेशन। So how would that come in the sum? रियलाइजेशन एक्सपेंस Okay. वो तो डायरेक्टली दे देगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन, ठीक है? बट कलेक्शन चार्जेस याद रखना चाहिए, तो अंडरलाइन करके रख दो वहां पे, प्लीज अंडरलाइन एंड कीप कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड है, तो आपको डेटर का जो पैसा आने वाला है उसमें से माइनस कर, ठीक है? तो डेटर से उतना कम आ रहा है, डिस्काउंट है, बैड डेट है, कलेक्शन चार्जेस है, ठीक? हाँ, डेटर से आया कितना? 9,600। लॉ अग्रीड टू टेक ओवर क्लोजिंग स्टॉक एंड लक अग्रीड टू टेक ओवर मशीनरी। ये दो एसेट्स टेक ओवर हो रहे हैं, ये सेल नहीं हो रहे, टेक ओवर। Furniture being old was given away free of charge to Fortune the servant. Would you pass any entry for that? No. Free of cost. Creditors accepted 3,000 in full satisfaction of their claims, that is liability. Close the books. So I think your only asset realized is debtors. Sorry. So only asset realized is debtors, 9,600. Sorry, corresponding entry कर दो रियलाइजेशन में बाय बैंक। बैंक में क्या आएगा आपका? टू रियलाइजेशन 9,600। इज दैट क्लियर? ये तो हुआ एसेट सोल्ड ऑफ। अब क्या सीधे लायबिलिटी पे जाए कि कुछ और बाकी है एसेट का? Assets taken over. यस, एसेट्स टेकन ओवर। दो एसेट है, दोनों ने एक एक टेक ओवर किया। लॉ भैया ने स्टॉक लिया है और लक भैया ने मशीनरी ली। क्या एंट्री करोगे? लॉ ने Capital to asset. लॉ करंट टू कैपिटल टू एसेट होता था, अब क्या होगा? लॉ करंट टू रियलाइजेशन। Now current. करंट टू रियलाइज। कैपिटल के जगह करंट और एसेट के जगह रियलाइज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लॉ करंट टू एसेट के जगह लॉ करंट टू रियलाइज। एसेट अपना अस्तित्व खो चुकी, लायबिलिटी अपनी अस्तित्व खो चुकी है, सब कुछ रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। तो लॉ करंट में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय लॉ करंट, बाय लॉ करंट। ओके, कितना आएगा बाय लॉ करंट? क्या लेके गया वो स्टॉक, क्या भाव पे लेके गया? 6,000। अच्छा, यहाँ पे बाय लॉ करंट, तो लॉ करंट में आएगा टू रियलाइजेशन 6,000। आर यू गेटिंग दिस? लॉ करंट में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय लॉ करंट। वैसे लक क्या लेके गया? लक, व्हाट डिड लक टेक ओवर? मशीनरी। सेम एंट्री करनी है, मशीनरी हो, स्टॉक हो या कोई भी एसेट हो। पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल टू एसेट, यहाँ पे पार्टनर करंट टू रियलाइजेशन। वापस टू रियलाइजेशन, इस बार लक के कॉलम में लिखेंगे हम लोग 3,000। लक के कॉलम में लिखेंगे 3,000 और यहाँ पे आ जाएगा बाय
luck current. Buy luck current account. This is machinery. That is 3,000. दोनों एंट्री समझा? टेक ओवर का, एसेट सोल्ड ऑफ, एसेट टेकन ओवर, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल. खाली एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? एसेट और लायबिलिटी का नाम यूज नहीं करना. एसेट और लायबिलिटी की जगह कौन सा अकाउंट यूज करना है अभी? रियलाइजेशन. बराबर है. एसेट और लायबिलिटी की जगह रियलाइज. इज क्लियर? सो पार्टनर करंट में 2 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर करंट. ये हो गया. अब उसके बाद एसेट का स्टोरी खत्म. मूव टू लायबिलिटी. अच्छा, गुडविल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्या अज्यूम करना है? Written off. रिटर्न ऑफ मतलब कोई सेल वैल्यू है उसकी? 0. जीरो सेल वैल्यू. याद है बताया था, एसेट्स का कोई इन्फो नहीं दिया है तो नो सेल वैल्यू, जीरो सेल वैल्यू. बट लायबिलिटी का कोई इन्फो नहीं दिया है तो क्या करना है? He paid off at book Paid off book at value. paid off at. Okay, now let's pass the entry for liability. बोलो मुझे, what is the journal entry for liabilities? to bank. To bank. Liability to Realization to bank या liabilities to bank? bank. Assets to bank. Realization. तो realization में to bank और bank में आएगा by realization. Realization में to bank, bank में आएगा by realization. रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन. क्या लिखोगे अभी? वन बाय वन. लायबिलिटीज कौन से पे ऑफ कर रहे हो आप? देखो यहाँ पे Creditors at 3 and bills. क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर 3,000. यस, क्रेडिटर्स को 3,000 दिया. करेक्ट. और बिल्स पेएबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्या अज्यूम करना है? Value to pay. वैल्यू पे ऑफ कर देना 5,000. और कोई लायबिलिटी है, कोई अलग से डिसोल्यूशन एक्सपेंस वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे? Can you see any dissolution expense? Check. Hello. No dissolution expense given, right? So assume that it is nil. Okay. No middleman. कोई middleman नहीं है आपका यहाँ पे. Okay. आपने खुद ने प्रोसेस कर ली होगी. If any liability is not, Sorry. बोलो. तो आपने बोला था ना कि कोई लायबिलिटी के बारे में इन्फो नहीं दिया तो पे ऑफ करना है ना? हाँ सर, तो ये दिया ना बिल्स पेएबल. डिसोल्यूशन क्यों नहीं था? अरे है कहाँ सब में? डिसोल्यूशन एक्सपेंस ही नहीं दिया है. होता तो करूंगा ना भाई, है ही नहीं. ठीक है. सब एडजस्टमेंट्स हो गए ना आपके? सब में दिया ही नहीं है डिसोल्यूशन एक्सपेंस. हेलो मोक्ष. ओके. नहीं समझा तेरे को? हेलो. हाँ समझा सर. करो टोटल कितना आता है? ये 8,000 आता है. तो रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन 8,000. गो थ्रू द एडजस्टमेंट्स एंड टेल मी, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट आउट टू बी डन, और ऑल द No. एडजस्टमेंट्स आर डन? Done. डन. करो फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. नो पार्टनर्स. 32,000 टोटल है. और It's loss, sir. Debit is greater. लॉस ऑफ हाउ मच? 4,400. किसको जाएगा ये? Both partners hold ratio. लेकिन which account? Partner Current. Current account. partner current account. This is law current and this is luck current. 2,200 each. Is that right? 2,200 each. और पार्टनर करंट में आएगा टू रियलाइजेशन 2,200 each. Now comes the part of closure of current account. Where do you close the current account and where do you transfer it? Capital. Okay. एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में नहीं करना है, क्योंकि वहां पे बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है. बराबर है. ये खाली डिसोल्यूशन में ऐसे करते हैं आप लोग. डिसोल्यूशन में करंट बंद करके कैपिटल, और कैपिटल बंद करके बैंक में जाता है, सेट ऑफ हो जाता है, पे ऑफ हो जाता है. तो कितना जाएगा करंट टू कैपिटल? देखो डिफरेंस करंट में. Sir, 11,200. दोनों का डेबिट ही बढ़ा है ना. Yes, both debit is greater. तो एक साथ लिख सकते हो बाय कैपिटल अकाउंट. ओके.
बाय कैपिटल, अलग अलग लिखा, बाय लॉ कैपिटल, बाय लक कैपिटल तो भी चलेगा। सिंपली बाय कैपिटल क्या होगा आपका, पहले वाले का 11,200, इधर 11,200, इधर कितना आ रहा है 9,200, 9,200, 8700 for luck. 8,700 दोनों का 8700 ही आ रहा है। और 87। बाय कैपिटल का क्या करस्पॉन्डिंग एंट्री मारोगे कैपिटल में, टू करंट, बराबर है। बाय कैपिटल का टू करंट, ये क्यों किया कोई बता सकता है? व्हाई डिड वी ट्रांसफर करंट टू कैपिटल? व्हाई वी डिड नॉट राइट डायरेक्टली टू बैंक और बाय बैंक इन करंट? Pay off partner. हाँ, लेकिन दोनों में अलग अलग क्यों नहीं किया? We'll pay it off. Sir, we have along to with pay all capital. the money together, na? टुगेदर, Capital and current. यस। करंट भी पार्टनर को बिलोंग करता है और कैपिटल भी पार्टनर को बिलोंग करता है। अब करंट में डेबिट बैलेंस है और कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब वही पार्टनर से पैसा लेना है करंट अकाउंट में और वही पार्टनर को पैसा देना है कैपिटल अकाउंट में। तो उसी से पैसा लो, उसी को पैसा दो, डज इट मेक एनी सेंस? उसी से 8,700 लो, उसी को 11,000 दो, उसी से 8,700 लो, उसी को 8,000 दो, डज इट मेक एनी सेंस? दिख रहा है आपको? करंट में डेबिट बैलेंस है, कैपिटल में क्रेडिट है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक अकाउंट में डाल देते हैं और नेट अमाउंट ढूंढ लेते हैं, भैया लेट क्या है, देना है कि लेना है, खत्म करते हैं वाया कैपिटल, बाय बैंक या टू। समझा? तो दोनों अकाउंट पार्टनर के ही हैं, दोनों पार्टनर को ही पैसा देना है, पार्टनर से ही लेना है, अलग अलग करके मतलब नहीं है, इसके लिए जोड़ देते हैं, करंट को कैपिटल में मर्ज कर देते हैं और नेट अमाउंट मिल जाता है, वो नेट अमाउंट भी पे ऑफ आया, वी रिसीव व्हाटएवर द नेट अमाउंट। ये नेट अमाउंट देखो अभी करंट कैपिटल में क्या डिफरेंस है, लॉ भैया का क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, राइट? तो 11,000 माइनस 8,700 कितना आता है ये? 2,300। क्या लिखोगे यहाँ पे, टू बैंक, ये आपका हो गया फाइनल सेटलमेंट, बराबर है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय बैंक, क्योंकि इसका डेबिट बढ़ा है, लक भैया का डेबिट बढ़ा है, तो ये आएगा 700 रुपया बाय बैंक। तो बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगा, टू रियलाइजेशन, टू कैपिटल। अरे सॉरी, बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री टू लक कैपिटल और टू बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय लॉ कैपिटल 2003। फाइनली आपका बैंक अकाउंट सेल्फ टैली हो जाना चाहिए ऑन 10,000। That's your problem. What was the different point in the problem? There was one different point in the problem. What was that? Collection charges. Collection charges. देव पटेल रोड पे लेक्चर अटेंड कर रहा है क्या? हाँ सर 5 मिनट रुको, बस पहुंच रहा ही हूँ। चलो, किधर गया था? इधर गया था देव पटेल? सर बाहर हूँ बाहर हूँ, लेक्चर का टाइम था मालूम नहीं है? सर, दूसरा टाइम पे बाहर आऊंगा इसलिए अभी बाहर ही रहे तू। चलो नेक्स्ट सम का ड्रॉ करो फटाफट। Some number. Perks of online lecture. Sum number 9. Sum number 9. Very important sum. Star mark करना. Very important sum. महेश, रमेश, दिनेश, कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। उधर आपको लोन फ्रॉम मिसेस महेश भी दिख रहा है, क्या करना है उसका? We need to make a separate. Sundry liabilities. Liabilities. Would you make a separate account? No. We are assuming that he is Mr. Mahesh, okay? अभी है तो है। एडजस्टमेंट में भी दिया है महेश नीचे- अग्रीड। हाँ, महेश अग्री, तो वो मिस्टर महेश पकड़ के चलने का ऊपर, ओके? और नीचे मिसेस महेश, उसकी वाइफ का अकाउंट, सेपरेट अकाउंट है दोनों।
अगर मिस्टर महेश दिया होता या महेश लोन दिया होता तो सेपरेट लोन Separate line. separate loan. Okay? तो अज्यूम करना है ये मिस्टर महेश है ऊपर और नीचे मिसेस महेश है. बना लो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट फटाफट सब लोग. We are doing sum number 9. सर कैश और बैंक का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा. नहीं नहीं कॉमन कैश स्लैश बैंक. कैश और बैंक दोनों दिए हैं. कैश स्लैश बैंक. जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में हो रहा था सेम थिंग विल डू. 3 है ना पार्टनर. Yes, Sir, महेश रमेश एंड दिनेश. so इसमें महेश का अकाउंट बनेगा ना. महेश लोन होता ना तो बनेगा. महेश इज अ पार्टनर. वो मिस्टर महेश पकड़ के चलने का. उसको ऊपर जो है ना वो मिस्टर महेश और नीचे मिसिस महेश लोन भी है. मिसिस महेश लोन मतलब नॉट अ पार्टनर राइट. तो सेपरेट लाइन मतलब नो सेपरेट अकाउंट. पार्टनर लोन है तो सेपरेट अकाउंट चाहिए. पार्टनर लोन नहीं है तो नो सेपरेट. महेश रमेश दिनेश. रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर. कैश और बैंक दोनों दिया है तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट. ओके. सम नंबर 9 वी आर डूइंग. स्टार मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट. चलो बताओ शुरुआत करते हैं. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप. एम्प्टी द बैलेंस शीट राइट. एम्प्टी द बैलेंस शीट. एम्प्टी द बैलेंस शीट फर्स्ट स्टेप. 1 सेकेंड ये ऑफ वीडियोस को थोड़ा निकाल देते हैं. जाते हैं आगे. Cancel to So what happened? just removing the off.
करू आपण कंटिन्यू. येस, नीर केंद्र कुछ क्वेश्चन नंबर. नीर केंद्र, why is your video off? अभी तो on था. नीर केंद्र, keep it on. Sir, 1 minute, there was some work with me. चल जाओगे. चलो. Now, sum number 9. Okay. First step. Tell me what is your first step. Empty the balance sheet, right? Empty the balance sheet. Balance sheet को खाली करना है. So, starting with capital account. Where do you put capital accounts? Buy balance BD. Buy balance BD. Capital में लिख दो buy balance BD. क्या क्या दिया हुआ है आपका? महेश, रमेश, दिनेश. 25, 15 and 10. 25, 15 and 10. Then, partners current accounts. That would be buy balance BD. Mahesh and Dinesh are on the liability side, 7,500 and 3,200. But Ramesh is on the asset side. Ramesh current. So वो बन जाएगा to balance BD. दिखा आपको? Ramesh current on the asset side, so that will become to balance BD. What is the amount of Ramesh current? I think it is 14,900. बराबर है? फिर रिजर्व फंड कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है? रिजर्व फंड को कैपिटल या करंट में? Current account. करंट. Since you are having current, you transfer reserve fund also to current account. See on top, what is the first line given to you? What is the ratio of profits? 5:3:2. In the ratio of their capitals. What are the capitals? 25, 15 and 10. What does 25, 15, 10 simplified to get us to? 5 is to 3 is to 2. 5 is to 3 is to 2 is your PSR. Okay. 5 is to 3 is to 2 is your profit sharing ratio. तो लिखो वहां पे 532 में डिवाइड करो रिजर्व फंड को. कितना होता है 532? मतलब 7,500, 4,500 and 3,000. बराबर है? 7,500, 4,500 and 3,000. Is that clear? Now, ये हो गया रिजर्व फंड. Do you have any accumulated loss P&L account on the asset side? Please check. दिख रहा है P&L account on the asset side? मिला? What are we supposed to do with that P&L account on the asset side? Distribute. Distribute it. Distribute it to whom? All three partners. All the three partners. Okay, in their profit sharing ratio. Distribute it to all the three partners in profit sharing ratio. चलो distribute करते हैं फटाफट. 5 is to 3 is to 2 में किया जाए तो कितना होता है ये? 1,500, 900 and 600. Absolutely right. 15, 9 and 6. रिजर्व फंड हो गया, P&L हो गया, कैपिटल हो गया, करंट हो गया. कैश इन एंड कैश एट बैंक एक ही अकाउंट में लिख देना है. टू बैलेंस BD. कैश is 800 and bank is 7,000. ये सब में कैश और बैंक दोनों दिया है तो आप कैश स्लैश बैंक हर एक एंट्री में भी यू कैन यूज कैश स्लैश बैंक. ओके, एंट्री में भी यू कैन राइट कैश स्लैश बैंक अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट. दोनों दिया हुआ है कैश और बैंक इसके. What about the remaining assets and liabilities? What are we supposed to do with them? उनको कहाँ ट्रांसफर करें? Where do we transfer? Realization. बराबर है? Assets on the debit side and liabilities on the credit side. Is this clear? Asset का डेबिट बैलेंस आप बंद करके बाय रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में टू एसेट्स. इधर आएगा टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट स्टार्टिंग विथ गुडविल. जो दिया है बैलेंस शीट से छापना है. फर्स्ट स्टेप इज अ नो ब्रेनर. एक्चुअली फर्स्ट स्टेप इज अ नो ब्रेनर. उसमें कुछ है ही नहीं, आपको क्वेश्चन से ही कॉपी करना है. सेकेंड और थर्ड स्टेप में थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होंगे. फर्स्ट स्टेप तो छापना है खाली. 11,000
फर्नीचर इज 6,000. डेटर्स आरडीडी कुछ नहीं दिया है, 20,000. रमेश करंट मत डाल लेना वापस, हमने ऑलरेडी करंट अकाउंट में बैलेंस लिखा हुआ है. स्टॉक इज 40,000. पीएनएल मत डाल देना, पीएनएल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है. फिर आपका मशीनरी है 27,000. और क्या है, कैश एट हैंड, कैश इन बैंक वापस मत डाल देना, ऑलरेडी अकाउंट ओपन है. तो हो गए सब एसेट बचे हुए, और टोटल कितना आता है आपका? 1,04,000. 1,04,000 लिख दो, 1,04,000. Similarly, you transfer the liabilities also to by sundry liabilities account, by sundry liabilities account. Okay. कैपिटल मत कर देना, हमने ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ है. करंट मत कर देना, ऑलरेडी किया हुआ है. रिजर्व फंड मत कर देना, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्रेडिटर्स से शुरुआत करनी है. क्रेडिटर्स बाकी हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो कि है 40,000 रुपीज. बिल्स पेएबल बाकी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो कि है 3,000 रुपए. लोन फ्रॉम मिसिज महेश भी बाकी है, लोन फ्रॉम मिसिज महेश भी बाकी है, दैट इज 10,000. और एक चीज है वो नीचे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. व्हाट इज दैट? आरडीडी. ओके, सेपरेटली लिखो या साथ में लिख दो लाइबिलिटीज के तो भी चलेगा. साथ में भी लिख सकते हो, सेपरेटली भी लिख सकते हो. सेपरेटली लिखा तो बेटर है, सेपरेटली लिखा तो बेटर है क्योंकि इसकी नेचर अलग है. नॉर्मली ये आरडीडी क्या कहाँ दिखता है आपको बैलेंस शीट में? नॉर्मली आरडीडी कहाँ दिखता है आपको? लेस फ्रॉम डेटर्स. लेस फ्रॉम डेटर करके दिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको लायबिलिटी में दिखता है. कोई बात नहीं है, वो है तो वही लायबिलिटी है. तो एसेट साइड पे जो है वो ग्रॉस डेटर है, और लायबिलिटी पे दिखा दिया, माइनस करने के बदले लायबिलिटी पे दिखा दिया है, तो वो लायबिलिटी. तो आरडीडी अलग से ही लिखना है और बाकी लायबिलिटीज अलग से. इन चारों को साथ में भी लिख सकते हो, लेकिन पे ऑफ करते वक्त ध्यान रखना, विल यू पे ऑफ आरडीडी? नो. डोंट पे ऑफ आरडीडी. वो अपने आप बैड डेट वगैरह कुछ हुआ तो एडजस्ट करके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है वाया रियल है. ठीक है, अपना ही प्रॉफिट है, अपना ही प्रोविजन है, अलग से बना के रखा हुआ है फॉर फ्यूचर बैड डेट्स. करो टोटल बाकी सन्ड्री लायबिलिटीज का कितना आता है? 43 + 10 53,000 आ रहा है. तो आपने पहला स्टेप आपने कर लिया है, सबके सब आइटम्स ट्रांसफर हो चुके होने चाहिए, चेक कर लेना है. कंफर्टेबल यहां तक? ऑल ऑफ यू क्लियर? बढ़ो आगे, बताओ मुझे व्हाट इज योर सेकंड स्टेप? चैत्य रामबिया, सेकंड स्टेप क्या करना है अभी? हाँ सर. बोलो, इसके बाद क्या करूं? सेकंड स्टेप क्या करोगे? बाय बैंक रियलाइजेशन में और टू रियलाइजेशन बैंक में. दैट इज बैंक टू रियलाइजेशन. दैट इज कौन सा एंट्री कर रहे हो? क्या ये इसका एंट्री का मतलब क्या है? बाय बैंक और टू रियलाइजेशन तो ठीक है, करेक्ट है, लेकिन उसमें मतलब क्या करना, कर क्या रहे हो? उसमें डेटर्स और वो सब लिखने का मतलब जो एसेट से पैसा आया, एसेट्स को बेच रहे, बराबर है. सेल या टेक ओवर ऑफ एसेट, तो ये सेल ऑफ एसेट की एंट्री है. तो रियलाइजेशन में बाय बैंक के जगह लिखना बाय कैश/बैंक, कैश बैंक दोनों है, और कैश बैंक में लिखना टू रियलाइजेशन. कैश बैंक में लिखना टू रियलाइजेशन. अब आप एडजस्टमेंट पढ़ो. स्टेप 2 में यू विल रीड द एडजस्टमेंट्स एंड चेक क्या क्या दिया है. देखो, महेश अग्रीड टू डिस्चार्ज मिसिस महेश लोन विद इंटरेस्ट 400. तो लायबिलिटी है, बाद में देखते हैं. 50% ऑफ स्टॉक इज टेकन ओवर बाय दिनेश एट 90% ऑफ बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड एट 75% ऑफ बुक वैल्यू. अब आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी. तो देखो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं. मुझे बताओ स्टॉक की वैल्यू कितनी? 40,000. स्टॉक की वैल्यू थी 40,000. ठीक है, अब स्टॉक के बारे में क्या दिया? रीड पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3. 50% ऑफ द स्टॉक इज टेकन ओवर बाय दिनेश एट
90% ऑफ बुक वैल्यू, 50% मतलब कितना, आधा, आधा मतलब कितना, 20,000, ये 20, ये 20, आधा स्टॉक टेकन ओवर बाय दिनेश एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो क्या भाव पे लेके गया दिनेश, बता सकते हो मुझे? ये 20,000 का स्टॉक, 18,000. 18,000, 20,000 का 90% कर लो, 20,000 का 90% कर लो, तो आपको मिल जाएगा 80,000, 18,000। वंस अगेन रीड दैट स्टेटमेंट, आधा 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय दिनेश एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी उसकी, 20,000, 20,000 का 90%, तो 18,000 में लेके गया, दैट इज टेकन ओवर। और थर्ड पॉइंट पढ़ो, रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड एट 75% ऑफ बुक वैल्यू, 15,000. realized at 75%. What is 75% of 20,000? 15,000. What do you mean by realized? Revalue. Sold for 50,000. Revalued यहाँ पे कहाँ पे करोगे? Sold. Realized No, no, मतलब sold. Okay. Revalued तो admission retirement death में होता है, उधर बड़ा कम हुआ. Okay. Realized मतलब इतने में बेचा. Realize पैसा आया. Realize. ओके पूरा मैटर ही रियलाइजेशन है, पैसा आने का. ओके सो रियलाइज्ड मतलब सोल्ड, रियलाइज्ड मतलब सोल्ड. ओके एसेट्स रियलाइज्ड मतलब एसेट्स सोल्ड. तो 15,000 में बेचा है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, स्टॉक कितना आएगा, स्टॉक आपका 20,000 की 15,000, बोलो 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 बोलो. 15,000 डायरेक्टली नहीं दिया प्लेट में सर्व करके कि भाई 15,000 में बेच दिया, थोड़ा ऐसा घुमा के दिया. आधा स्टॉक टेक ओवर हुआ, आधा स्टॉक बेचा, 75% बुक वैल्यू में बेचा, 20,000 75% कर. व्हाट इफ दिया होता कि इट वाज सोल्ड एट 110% ऑफ बुक वैल्यू, 20,000 का स्टॉक वाज सोल्ड एट 110% ऑफ बुक वैल्यू, 110% मतलब 10% ज्यादा पे बेचा, 90% मतलब 10% कम पे बेचा, 80% मतलब 20% कम पे बेचा, 120% मतलब 20% ज्यादा पे. इज दिस क्लियर? ऐसा अलग अलग कभी कैलकुलेशंस देगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली है वो. देन ये समझा, स्टॉक का ब्रेकअप समझा, स्टॉक का टेक ओवर का एंट्री करूंगा मैं, बाद में करूँ, पहले सेल खत्म करो. तो थर्ड पॉइंट में सेल हो गया. फिर गुडविल रियलाइज नथिंग, वुड यू पास एनी एंट्री फॉर दैट? No. गुडविल रियलाइज नथिंग का कोई एंट्री आएगा नहीं, कतई नहीं, शून्य वैल्यू. बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स आर 2100 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली. मुझे बताओ, वुड यू रिकॉर्ड बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड एनीवेयर? We'll subtract it from that number. हाँ, तो वो क्यों दिए हैं आपको, बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि भैया डेटर से कितना पैसा आया, डेटर से कितना पैसा आया, आना चाहिए था 20,000, 16,400. कितना आया, 1,400. 16,400. 3,400. कैसा मालूम पड़ा? 1,500 रुपया हो गया आपका डिस्काउंट और 2,100 रुपया हो गया बैड डेट. ये पैसा आया कि नहीं? नहीं आया. कोई एंट्री करनी है एक्सपेंस की अलग से आपको? बैड डेट डिस्काउंट अलाउड नहीं करनी है, अपने आप लॉस वॉस एडजस्ट होने ही वाला है. इज दिस क्लियर? तो कितना पैसा आया आपने को वही रिकॉर्ड करना है. ये नहीं दिया कि डेटर ने कितना पैसा दिया, घुमा के दिया, इतना नहीं दिया. डिस्काउंट और बैड डेट इतना नहीं दिया, जैसे लास्ट सम में था कलेक्शन चार्जेस और बैड डेट, उतना नहीं दिया, बाकी का दिया, बाकी का 16,400 मिल गया. समझा ये पार्ट? अंडरलाइन करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, पेपर में भी आ चुके हैं, टेस्ट में भी आएंगे. मशीनरी रियलाइज्ड एट 150% ऑफ द बुक वैल्यू, 150% रियलाइज हुआ, वो ज्यादा मिला. 50% extra book. 40,500 is the तो amount. कितना पैसा आया मेरे को तो मालूम नहीं है, बोलो मशीनरी से कितना पैसा आया? Into 150 divided by 100. इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना आता है? 40,000. 2850.
Sir, granted is directly 50% extra. हाँ, वो भी कर सकते, डायरेक्टली 50% एक्स्ट्रा करो तो भी सेम आंसर, 50% एक्स्ट्रा, 150% रियलाइज। Okay. Sir, it is 40,500. वो तो लिखा है 40,005, Someone told 27 something. That's नहीं, why. 40,005, 27,000 का मशीन है, उसको 50% ऐड करो या उसको इंटू 150% करो, इंटू 150 अपॉन 100। अगर 90% रियलाइज हुआ होता तो You would subtract. minus 10%. -10%। ओके, अगर 80% रियलाइज होता तो -20%, 120% रियलाइज हुआ होता तो Add 20. ऐड 20, 130% रियलाइज हुआ होता तो ऐड Add 50%। इज क्लियर? 150% रियलाइज हुआ है तो ऐड 50%। हाँ बोलो। सर ऐसा मशीन इतना अप्रिशिएट होकर बिकता है कभी? ये सब थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। हो सकता है बहुत रेयर सिनेरियो में कि सामने वाले की डिमांड है उस मशीन की, आपके पास कोई ऐसी मशीन है मार्केट में बननी बंद हो चुकी है और डिमांड बढ़ गई है, तो शायद कभी मिले, वरना टेंजिबल एसेट जनरली कम भाव पे ही जाए, तो टेक्नोलॉजी वाले एसेट होते हैं जनरली कम भाव। लैंड एक खाली अप्रिशिएट होके जा सकते हैं, लैंड या प्रैक्टिकल, ये थियोरेटिकल है ना, तो आपको कैलकुलेशंस के लिए सब अलग अलग मेथड, कभी ज्यादा कभी कम, 150%, 120%, 80%, 70%, उसके लिए मशीनरी रियलाइज 150% ऑफ बुक वैल्यू, देन दिनेश अग्री टू मीट बिल्स पेएबल, ये तो वापस लायबिलिटी है, बाद में देखते हैं। फर्नीचर रियलाइज नथिंग, वुड यू पास एनी एंट्री फॉर दैट? नो एंट्री फॉर दैट। सो आई थिंक सब एसेट से जितना पैसा आना था ले लिया, टोटल मार्क कितना आता है? 71,000. 71,900 और करस्पॉन्डिंग एंट्री भूलना मत। रियलाइजेशन में बाय कैश बैंक में 2 रियलाइजेशन 71,900, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू पास करस्पॉन्डिंग एंट्री। काफी लोग करस्पॉन्डिंग एंट्री पास ही नहीं करते हैं और बाद में ढूंढते हैं कि सम टैली कैसे नहीं होगा। शाबाश, ओके, करो आप बड़े खुदा। नाउ नेक्स्ट वन, मूव टू एसेट्स टेकन ओवर। मूव टू एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर में कौन सा एसेट टेक ओवर हो रहा है, जरा देख के बताओ। स्टॉक स्टॉक टेक ओवर हो रहा है पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में स्टॉक टेक ओवर हो रहा है, बराबर है। अब क्या होगा, टेक ओवर का एंट्री दिनेश भैया ने टेक ओवर किया है स्टॉक को। दिनेश करंट टू रियलाइजेशन। स्टॉक चाहिए था तो लेके गए। दिनेश करंट टू रियलाइजेशन, वेरी गुड। दिनेश करंट टू एसेट के जगह दिनेश करंट टू रियलाइजेशन। दिनेश करंट में 2 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय दिनेश करंट, बाय दिनेश करंट। स्टॉक लेके गए, क्या भाव पे लेके गए? 18,000. 18,000 में लेके गए, बराबर है। और ये कहाँ से मिला 18? ये रहा, देखो 18, ये वर्किंग नोट में बनाया हुआ, टेकन ओवर बाय दिनेश एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, दिख रहा है, यहाँ से मिला 18, ठीक है, 20 का 18। देन व्हाट, रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज, गुडविल रियलाइज नथिंग, बैड डेट एंड डेटर हो गया, मशीन हो गया, डेटर हो गया। एक ही है वो दिनेश का स्टॉक टेकन ओवर 18,000, वही टोटल है। यहाँ पर दिनेश के कॉलम में लिख दो 18,000। आई थिंक माय एसेट साइड इज फिनिश्ड। Do I have anything left out on the asset side? So let's move to the third and final step. What is the third and final step? Asset का काम तमाम। अभी क्या करना है? Realization to bank. Realization to bank. Start paying off your liabilities. Realization में to cash bank लिखना है। Realization में to cash bank और cash bank में by realization. Realization में to cash bank में by realization. सबसे पहला लायबिलिटी क्या पे ऑफ करोगे? क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? पढ़ो जरा। डायरेक्ट बुक वाले पे जाता कुछ नहीं. नो इन्फॉर्मेशन, तो डायरेक्ट बुक वैल्यू पे जाएगा, एकदम करेक्ट। और व्हाट अबाउट बिल्स पेएबल? वो टेकन के बाद में पास एंड व्हाट अबाउट लोन फ्रॉम मिसेस महेश? is discharged with an interest of 400. लेकिन क्या वो पे ऑफ किया है कि टेक ओवर हुआ है?
डिस्चार्ज का मतलब पे ऑफ हुआ है ना। नहीं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट करो। आपको हाँ, मालूम statement मालूम में कैसे पढ़ा। पड़ेगा कि कोई चीज बिजनेस ने पे ऑफ की है कि कोई चीज पार्टनर ने टेक ओवर किया है? हाउ विल यू अंडरस्टैंड कोई चीज बिजनेस पे ऑफ कर रहा है कि कोई चीज पार्टनर पे ऑफ कर रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट? If it is taken over by partner तो पार्टनर का नाम दिया होगा ना कि this हाँ, he तो agreed तो to। पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, क्या दिया है? It is महेश taken over। agreed to discharge Mrs. Mahesh loan with interest. Mahesh agreed. Is business paying or Mahesh is taking it over? महेश Mahesh is taken। महेश इज टेकिंग इट ओवर। आपको समझ में आ रहा है बिजनेस पे ऑफ कब करता है और कब टेक ओवर होता है? लो, जब भी कोई पार्टनर कुछ कर रहा है ना, पार्टनर अग्रीड, पार्टनर टेक ओवर, पार्टनर अग्रीड टू डिस्चार्ज, मतलब क्या है? वो टेकन ओवर। बिजनेस ने पे ऑफ किया तो डायरेक्टली दे देगा, क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ, बिल्स पेएबल वेर पेड ऑफ, कोई पार्टनर का नाम नहीं देगा वहां। ना ध्यान से, हेलो, पार्टनर का नाम दिया मतलब वो टेक ओवर हो रहा है, पार्टनर का नाम नहीं दिया मतलब बिजनेस पे ऑफ। तो बिजनेस ने क्रेडिटर्स पे ऑफ किया, और कुछ पे ऑफ करना है अपने को? बोलो मेरे को, एनीथिंग एल्स वी आर सपोज टू पे ऑफ इन द सम? चेक, एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस, एनी डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कुछ भी है? नहीं है। एक ही लायबिलिटी थी, कर दी रियलाइजेशन में टू बैंक, कैश बैंक में बाय रियलाइजेशन 40,000 बुक वैल्यू, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दिया लायबिलिटी का तो पे ऑफ करना है बुक वैल्यू। व्हाट अबाउट टेकन ओवर? टेक ओवर की एंट्री क्या होगी? महेश ने मिसेज महेश का लोन टेक ओवर किया। व्हाट इज द एंट्री फॉर लायबिलिटी टेकन ओवर? नॉर्मली realization to current. रियलाइजेशन टू महेश करंट। वैसे तो लायबिलिटी टू करंट होता है, यहाँ पे रियलाइजेशन टू महेश। लिख दो रियलाइजेशन में टू महेश करंट, टू महेश करंट। क्या लिखे गया? मिसेज महेश का लोन क्या प्राइस पे लेके गया? 10,400। हाँ, विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। तो जो भी इंटरेस्ट है इधर ही चिपका देने का। इंटरेस्ट की कोई अलग एंट्री आएगी, बैड डेट की कोई अलग एंट्री आएगी, डिस्काउंट अलाउड की कोई अलग एंट्री आएगी, कोई भी खर्चे या इनकम की कोई सेपरेट एंट्री आएगी एक्सेप्ट फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस? कुछ नहीं, बाकी सब कुछ प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट होने वाला। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का इसलिए आया क्योंकि वो बाहरी अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्डेड होता तो उसका भी नहीं। अनरिकॉर्डेड था इसलिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस करना पड़ता है। बाकी सब तो अंदर अंदर ही लायबिलिटीज है, तो डायरेक्टली फुल पेमेंट लिख देना 10,400। दैट लॉस ऑफ 400 वुड बी एडजस्ट। ये एंट्री समझ में आई सबको? ध्यान से देखो सब लोग। टू महेश करंट, क्यों मैंने टू महेश करंट लिखा और क्यों टू कैश बैंक नहीं लिखा? बताइए। Because the business has to pay that to partner and it is taken over by It is partner taken decided to bear the। ओके, टेकन ओवर नॉट पेड ऑफ। कैसे पता चला टेकन ओवर है? महेश अग्रीड, महेश अग्रीड टू डिस्चार्ज, मतलब महेश पे करेगा। महेश घर जाएगा अपनी पत्नी के पास, बोलेगा ये लो तुम्हारे लोन का पैसा। महेश पे करेगा, बिजनेस पे नहीं करेगा। ओके, तो बिजनेस से टेक ओवर। तो महेश करंट में बढ़ा दो, बिजनेस महेश को पे कर देगा सेटलमेंट के वक्त, तो करंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। दिस इज 10,400। व्हाट अबाउट बिल्स पेएबल? पॉइंट नंबर 7 पढ़ो सब लोग। पॉइंट नंबर 7, दिनेश अग्रीड टू मीट बिल्स पेएबल। व्हाट डज इट मीन? बताओ बताओ बताओ। Payable taken over. इट इज टेकन ओवर बाय whom? दिनेश। एंट्री क्या मारोगे? Realization to Dinesh. टू दिनेश करंट। सिंपल एंट्री है, देखो इसे एकदम देखोगे ना, एकदम सिंपल सिमेट्रिकल फॉर्मेट है। सिमेट्री मालूम है? सिमेट्री, ऐसा सिमेट्री देगा ना, दो साइड फ्री हैंड ड्राइंग। सिमेट्री ड्राइंग में किया होगा, इधर एसेट बेचा तो बाय कैश बैंक, लायबिलिटी पे ऑफ की तो टू कैश बैंक। एसेट टेक ओवर तो बाय करंट कैपिटल, लायबिलिटी टेक ओवर हुई तो टू करंट कैपिटल। इज वेरी मच सिमेट्रिकल। इज दिस क्लियर? इनफैक्ट पूरा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सिमेट्रिकल, डबल एंट्री सिस्टम है। सिमेट्री घुस गई दिमाग में तो ज्ञान प्राप्त हो गया। ओके, जो एसेट के साथ होता है वो लायबिलिटी के साथ ऑपोजिट होता है, जो एक्सपेंस के साथ होता है इनकम के साथ ऑपोजिट।
एसेट बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट. इट्स ऑल ऑपोजिट, सिमेट्री अकाउंट, इक्वल एंड ऑपोजिट. चलो बढ़ते हैं यहाँ पे. टू दिनेश करंट बिल्स पेबल लेके गया. क्या भाव पे लेके गया बिल्स पेबल? बोलो बोलो बोलो. पेबल क्या भाव पे लेके गया? 3000 बुक वैल्यू. करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय रियलाइजेशन. दिनेश के कॉलम में 3000 लिख दो. अब कुछ भी और बाकी है? एनी अदर एसेट और लायबिलिटी लेफ्ट आउट? सोल्ड, टेकन ओवर, पत्ती क्यों? नो पार्टनर्स लोन. फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. बोलो क्या आ रहा है? Total is 1,57,400. प्रॉफिट और लॉस. Loss of 13,500. इसको जाएगा ये तीनों. व्हाट इज द PSR? 5:3:2. बाय पार्टनर में आएगा रमेश में 4050 and for Dinesh it is 2007. 2700. ओके. पहले दो का 40 महेश का 6750 और रमेश का 4050. बाय करंट का करस्पॉन्डिंग एंट्री करंट में डाल दो. टू रियलाइजेशन 6750, 4050 एंड 2007. अब बंद करना है आपको करंट. करंट बंद करके कहाँ डालने वाले हो? बताओ बताओ बताओ. कैपिटल में डाल. क्या सबका क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है? क्या किसका डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है? कुछ अलग अलग है? देखो जरा. आई थिंक महेश का डेबिट क्रेडिट ज्यादा है, तो महेश से शुरुआत करते हैं. 25,400 आ रहा है यहाँ पे. 25,400 इधर आ रहा है. डिफरेंस बराबर है. क्या लिखोगे यहाँ पे? टू और महेश कैपिटल. टू महेश कैपिटल. करंट में लिखोगे कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय महेश करंट. ओके, बाय महेश करंट. कितना आ रहा है डिफरेंस? क्रेडिट माइनस 17150. 17150. महेश के कॉलम में लिख दिया. रमेश का डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो डेबिट का टोटल करो. कितना आ रहा है ये? 19,850 आ रहा है. 19,850 आ रहा है. 19,850. इज दैट राइट? आई डोंट नो. यस सर. और क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय व्हाट? बाय रमेश को बंद करना है. बाय रमेश करंट. रमेश करंट में करंट कैपिटल. बाय रमेश कैपिटल. और कैपिटल में क्या लिखोगे? टू रमेश करंट. टू रमेश करंट. कितना आ रहा है? 19,850 माइनस 15,450 आ रहा है. 15,450, 15,450. तीसरा बंदा 350 आ रहा है. 15,350. 350 आ रहा है. तीसरा बंदा दिनेश है. दिनेश को बंद करो. कौन सा साइड बढ़ा है दिनेश का? जरा चेक. डेबिट. डेबिट ही बढ़ा है, तो 18 + 2 20, 21,300 आ रहा है. 21,300. इसके लिए क्या लिखोगे? 21,300 बाय व्हाट? Dinesh Capital. दिनेश कैपिटल. और दिनेश कैपिटल में क्या आएगा? टू दिनेश दिनेश करंट. करंट. दिनेश के कॉलम में डाल दो. अभी कितना है डिफरेंस? 12,100. 12,100. 12,100. अंत में बंद करना है कैपिटल. चेक करो विच साइड ऑफ कैपिटल्स आर ग्रेटर और लेसर. आई थिंक दो का ये साइड आ रहा है ना. महेश इसमें साथ न लखी सके. मतलब करंट अकाउंट में सीधा भी बताना बैलेंस. हाँ, तो इधर साथ में लिख सकते हो बाय R&D कैप एंड इधर 2M कैप. यू कैन या राइट. फिर सीधा बाय कैपिटल करके ऐसे हाँ, अलग बाय अलग कैपिटल columns, भी. हाँ. यस, बाय कैपिटल एंड टू करंट भी लिख सकते हो. बाय कैपिटल एंड टू करंट भी लिख सकते हो. फाइनल कितना आ रहा है? बैलेंस बोलो मेरे को इसका. टू कैश बैंक लिखना, महेश का बाय 42,150. कैश बैंक लिखना. महेश का 42,150.
42. 42 150 बराबर है, चेक कर लो। और टू कैश बैंक का आ जाएगा बाय महेश कैपिटल 42 150। और रमेश और दिनेश का कितना आ रहा है? ये 15 15 12 100 15 350 और 350 और 12 100 माइनस 10,000 200। 2100 तो बाय कैश बैंक का हो 350 जाएगा टू रमेश कैपिटल, इनका पैसा कम था तो ये घर से लेके आए, और टू दिनेश कैपिटल। कैश बैंक में आएगा टू रमेश 350, टू दिनेश 2100, टैली होना चाहिए। इट शुड टैली, चेक चेक। चेक कीजिए टैली हो रहा है क्या नहीं, चेक कीजिए। इज इट टैलिंग? यस। Yes. अभी इसके बाद 2 पेजेस छोड़ना फॉर जर्नल, इसका जर्नल करना है अपने को, 2 साइड छोड़ देना जर्नल के लिए। और अब आपको पहले करना है सम नंबर 10 ऑन योर ओन। सम नंबर 10 20 मिनट देखो मिलते हैं बोर्ड्स में, मैं आपको 20 मिनट दे रहा हूँ। बोर्ड साइज बोर्ड लेवल का सम है, करंट अकाउंट वाला सम है। 10:42 हुए हैं, मैं खुद डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 11:02 तक खत्म करो, फिर इसका जर्नल करेंगे, फिर वाइंड अप करें। चलो फटाफट करो, 20 मिनट का टाइम है, फटाफट करो, चलो फटाफट। सम नंबर 10, कुछ हेल्प चाहिए तो पहले दिमाग वापरना, उसके बाद भी नहीं जम रहा है तो मेरे से पूछना, लेकिन छापना मत, ठीक है? कम ऑन, ट्राई इट। सम नंबर 10 पूरा सम खुद से ट्राई करो सब लोग। कैश दिया है तो कैश अकाउंट बनाना, 2:2:1 इज PSR। 20 मिनट्स इज बोर्ड टाइमिंग, देखो आपको कितने टाइम में होता है। 11:02 तक ट्राई करो। 3 पार्टनर है, विद्या, वर्षा एंड वृंदा। 3 पार्टनर कैपिटल, 3 पार्टनर करेक्ट।
સર હા સર 11th વાળાનું રિઝલ્ટ અરે 12th વાળાનું જે રિઝલ્ટ છે 11th ના બેસિસ પર છે. હા 11th અને તમારું પ્રિલિયમ્સ ને 12th ને બધું આપેલું હતું ને બ્રેકઅપ 12th ના અસાઇનમેન્ટ ને એના બધા ક્યારે થશે રિઝલ્ટ? એટલા જે છે રિઝલ્ટ ક્યારે છે? 31st એ તો છે 31st. સર એનો મતલબ જેણે 11th માં ભણ્યું હશે એને 12th માં માર્ક્સ આપશે. એ પણ 11th ની ફાઇનલ એક્ઝામ નથી 11th ની સેમેસ્ટર ને યુનિટ ટેસ્ટ ને એવું બધું કઈ કરવાનું. સર 10th ના બી માર્ક્સ છે એમાં. 10th ના ખબર નથી 10th જોવાના છે 11th ના અને 12th ના લેશે એ બે તો છે. 12th ના મેજોરિટી વેટેડ 12th નું જ છે 12th ના સબમિશન એમસીક્યુ એક્ઝામ જે કોલેજે લીધી હતી ને તમારી એટલે તમારી તો નહીં અત્યારે જે 12th આવી અમારી થશે જ સર. તમારે તો ગેરંટીડ ઓફલાઈન બોર્ડ પાક્કું 100%. સર હજી વેક્સિન પણ નથી લાગી. ક્યારે સર આવશે પેલા ખબર વેક્સિન 2 ડોઝ લાગશે પછી ચાલુ કરશે. બધા લાગી જશે સપ્ટેમ્બર Actually, ઓક્ટોબર કોલેજ જ 84 days તો આપી break જોઈએ. હશે. 100 કરોડ વેક્સિન આવવાની છે 100 કરોડ 40 કરોડ તો થઈ ગયા ઓલરેડી વેક્સિન. સર કોલેજ લાસ્ટ યર નું take સર હવે તો કરજો. હજી 18 પણ નથી તો કેવી રીતે વેક્સિન આપશે એ લોકો? હા ના લઈ લેશે હવે હજી 18 ઓલું ના 84 days નું કરશે ને બી સર વેક્સિન. લાસ્ટ યર અકાઉન્ટ્સમાં શું ઓમિટ હતું? ઓમિટ કાંઈ હતું જ નહીં નામનું હતું. કારણ કે 25% રિડ્યુસ થયું. હા એ 25% માં શું કર્યું એ લોકોએ આ જે ઓપ્શનલ ચેપ્ટર છે ને એ કોલેજમાં કીધું કે નહીં ભણાવો પણ બોર્ડમાં આવવાના છે. બોર્ડ પેપરમાં પેટર્ન સેમ રાખી ખાલી કોલેજ વાળાને કીધું અડધા ચેપ્ટર નહીં ભણાવો એ તો આમે નથી ભણાવતા તમારું તો કાંઈ ઓછું નથી ખાલી લોલીપોપ છે. મેથ્સમાં પણ પૂછજો રાજીવ સરને શું ઓછું છે કાંઈ ઓછું થયું જ નથી. राजीव सर बोलते हैं 100 एग्जाम्पल निकाल दिया फिर वही सम टेक्स्ट बुक हाँ सब कुछ करने का ही है नाम का रिडक्शन. And sir, they just give for self-study, the cancelled हाँ portion. कैंसल्ड पोर्शन फॉर सेल्फ स्टडी करने तो है ही बोर्ड में तो आएगा ही पूछेगा तो सही एग्जाम. बोर्ड का पैटर्न कोई चेंज नहीं किया वही रखा. खाली इतना किया था कि एडमिशन मैं तुमको बोला ना जो जजमेंट एडमिशन रिटायरमेंट में से एक डिसोल्यूशन बीओई में से एक ऐसा है 4 में से 2 नहीं 2 में से एक 2 में से एक फिक्स हो. आ रहा है ये प्रॉब्लम आ रहा है ओ बंधुओं आवड़े छे હા સર ફાવે જ. આવે છે કરું કરું. સર અનરેકોર્ડેડ ટાઈપરાઇટર એસેટ થશે ને? એસેટ એની કોઈ સેપરેટ એન્ટ્રી નહીં સાથે જ કરી નાખો એસેટ રિયલાઇઝ એસેટ ટેકન ઓવર માં સાથે રેકોર્डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो एंट्री रिमेन्स सेम. Unrecorded typewriter means it is our income. इनकम मतलब वो पूरा का पूरा सेल कर देने का ना तुमको इधर इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करना. That's why हाँ it is taken over. हाँ टेकन ओवर तो बाय पार्टनर कैपिटल बाय पार्टनर તો ખાલી એક જ એન્ટ્રી ને કેપિટલ ટુ રિયલાઇઝ. करंट टू रियलाइज करंट में टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन में बाय करंट चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या उसका बुक वैल्यू 0 था और सडनली कितना हो गया 1000 अभी दिया 1000 का था. 900. अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 1000 बट वो टेकन ओवर फॉर 900 तो कौन सा वैल्यू लोगे 1000 के 900 डायरेक्टली 900. 1000 का कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं था. इग्नोर दैट 1000. गॉट इट.
इग्नोर दैट 1000. अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था 1000 का, लेकिन बुक में तो 0 था. बुक में 0 था, सीधा कितना पैसा में टेक ओवर हुआ तो 900. सीधा टेक ओवर वैल्यू 900. बुक वैल्यू 0, टेक ओवर वैल्यू 900. 1000 को इग्नोर करते. 1000 का कोई काम नहीं. Sir, unrecorded liabilities also treated the same. हाँ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी करने का पे ऑफ सीधा 6000 टू बैंक, टू कैश. रियलाइजेशन में टू कैश, कैश में बाय रियलाइजेशन डायरेक्टली 6000. रिकॉर्डेड के साथ ही पे ऑफ कर देने का. अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड दोनों का एंट्री सेम. रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट हो चाहे रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, दोनों का एंट्री सेम. मतलब अनरिकॉर्डेड जो टाइपराइटर है सर वो भी टेकन ओवर ही होगा डायरेक्ट ना. डायरेक्ट टेक ओवर. सर 54,200 आ रहा है फाइनल. कैश बैंक हाँ खत्म हो गया तेरा. हाँ सर. चेक कर बराबर से सब राइट है. Sir, I had a balance sheet which is there was a balance of 1800. खाली 1800 subtract करें ना debtors में amount लग जाता है. yes. 1800 सब्ट्रैक्ट करके नेट वैल्यू इंडेक्स. There is a loss, no? क्या है पूजन? हाँ सर लॉस है. कितने का लॉस आया? 6,700. 13,700. अलग अलग आ रहा है तुम. मुझे भी 6,700 आया. Is that correct? 6,700 का लॉस. Yes. सर We tallied. Yeah. What is the answer? 54,200. 54,200. Correct.
सर जो बैलेंस है सर 7,600 आया ये रियलाइजेशन में। डिफरेंस 6,700 आ रहा है। क्या आ रहा है? लॉस, there's a loss on realization. Hello. सर 7,600 6,700. 6,700. चेक बराबर चेक। ये कैलकुलेशन राइट है? जरा स्क्रीन पे देखते रहना। इसके बाद 9 सम का जमा करना है। हाँ, टोटल कितना आ रहा है रियलाइजेशन का? 64,800. लॉस ऑफ 6,700 बराबर। मेरे को ब्रेकअप बोलो। 2680, 2680, 1340. मैं तीसरी का 1340 है बराबर। क्या कितना आ रहा है? वर्षा का, वर्षा कैपिटल, वर्षा का कितना आ रहा है डिफरेंस? वर्षा का क्या आ रहा है डिफरेंस? विद्या का इट इज 320 ना, वर्षा का कितना आ रहा है? 3420. 420. 3,000। व्हाट नेक्स्ट? लास्ट में फाइनल सेटलमेंट आई थिंक सबका सरप्लस ही आ रहा है। to cash 20,340. Is that right? 20,320. 20,320. 13,420 and 8,660 बराबर है।
हेलो सर, आ रहा है क्या ये 20,320, हाँ सर बराबर 13,420 है। and 8,660 tallies on 54,200. Okay, tallies on 54200. Check and draw the journal for 9th sum. ये sum में journal नहीं है सर बस ना आज सर बस अभी नेक्स्ट क्लास सर। 9th sum complete करना है। next lecture I'm starting with a new variety, single partner insolvency. So please एक sum last journal कर लो फटाफट। 2 मिनट सर, 1 मिनट से लिख। सर कैपिटल अकाउंट टू देख लो। बोलो any doubt in this sum? Did you get the sum? sum आया कि नहीं? अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर का समझा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, एंट्री सेम, टू बैंक या बाय बैंक या टू कैपिटल या बाय कैपिटल। टेक ओवर हुआ है तो टू कैपिटल या बाय कैपिटल या टू करंट या बाय करंट। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से फर्क नहीं पड़ता और सीधा टेक ओवर वैल्यू लिखना है। 1000 का था 10,000 का था फर्क नहीं पड़ता है। अभी कितने में टेक ओवर हुआ? 900 में, तो सीधा टेक ओवर वैल्यू 900 इज योर टेक ओवर। 1000 रुपीज को इग्नोर करना, टाइपराइटर में 1000 को इग्नोर करना। करो चलो फटाफट। Draw the journal. किया हुआ है ना अपने 9th सम, दो साइड का प्रीवियस सम है 9th सम में जाना। चलो बोलो मुझे फर्स्ट एंट्री क्या होगा 9th सम का? फर्स्ट एंट्री रिजर्व फंड टू महेश करण टू रमेश करण टू दिनेश। रिजर्व फंड टू महेश रमेश दिनेश कर। ओके सॉरी, शॉर्ट में नरेशन लिखना है। रिजर्व फंड टू महेश रमेश दिनेश करण, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट। रिजर्व फंड टू महेश रमेश दिनेश करण, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट। रिजर्व फंड टू महेश रमेश दिनेश करंट, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, दैट वाज योर फर्स्ट एंट्री। क्या होगा सेकंड एंट्री? PNL हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? PNL टू महेश रमेश दिनेश करण टू पी। महेश रमेश दिनेश करण। महेश रमेश दिनेश करण टू पीएनएल। टू पीएनएल है ना, महेश रमेश दिनेश करण टू पीएनएल। महेश रमेश दिनेश करण टू पीएनएल। महेश रमेश दिनेश करण टू पीएनएल। accumulated loss transferred. accumulated loss transferred. accumulated loss transferred. What is the next step after loss, after general reserve? Big journal entry. Entry number 3 would be big journal entry. क्या होगा ये? Realization to what? Big journal entry में क्या लिखना है? Realization to Goodwill, furniture, goodwill, furniture, debtor, stock. debtors, stock. Realization to goodwill, furniture, debtor, stock machine. Realization to goodwill, furniture, debtor, stock machine. Total is 1,04,000. Realization to goodwill, furniture, debtor, stock machine. Short narration लिख दो, sundry assets transferred. Sundry assets transferred. Sundry assets transferred. Sundry assets transferred. What next? Can we combine taken over का entry? नहीं, सेल अलग, टेक ओवर। टेक ओवर का दो कंबाइन कर सकते, टू टेक ओवर एंट्री यू कैन कंबाइन। फोर्थ एंट्री फॉर लायबिलिटीज क्या होगा ये? Sir, can you repeat the narration? Sundry assets transferred, realized. Okay.
What will be the fourth entry? क्या होगा fourth entry? Hello. Creditors, bills payable, loan from Mrs. Mahesh to realization. So first we'll write RDD. Any order is ऊपर नीचे हुआ तो चल. Creditors, bills payable, loan from Mrs. Mahesh to realization. Creditors, bills payable, loan from Mrs. Mahesh to realization. Sundry liabilities transferred. Creditors, bills payable, loan from Mrs. Mahesh to realization. Sundry liabilities transferred. Sundry liabilities transferred. Fifth entry, RDD का क्या entry होगा? RDD का RDD to realization. RDD to realization. Okay, RDD to realization. RDD to realization. RDD transferred. Like creditors, BP, loan from Mrs. Mahesh to realization. फिर RDD to realization. Sir, but we can combine the entry, right? Yes. RDD को sundry liabilities के साथ combine कर सकते. Okay, RDD to realization, RDD transfer. What is the sixth entry? क्या लिखोगे बोलो? Bank to realization. Cash bank to realize. Cash slash bank to realize. Cash slash bank to realization 71,900. Sundry assets realized. Cash slash bank to realization 71,900 being sundry assets realized. Sundry assets realized. Cash slash bank to realization 71,900 sundry assets realized. Sundry assets realized. What about seventh entry? क्या होगा seventh entry? बोलो. Dinesh current to realization. Dinesh current to realization. Okay, Dinesh current to realization. Dinesh current to realization. Stock taken over. Stock taken over. Dinesh current to realization amount is 18,000. Stock taken over. Dinesh current to realization 18,000. Stock taken over. Stock taken over. ठीक है? What next? Come on. Eighth entry क्या होगी? Eighth entry. What will be your eighth entry? Mrs. Mahesh loan bills payable to Dinesh current to Mahesh current. Na. Realization to Realization to cash bank. Realization to cash bank 40,000. Realization to cash bank 40,000. Realization to cash bank 40,000. Sundry liabilities paid off. Sundry liabilities paid off. Realization to cash bank 40,000. Sundry liabilities paid off. Sundry liabilities paid off. What will be your ninth entry? ये दोनों को आप merge कर सकते हो. Ninth entry क्या बनेगा आपका? Realization to Mahesh current to Dinesh current. Realization to Mahesh current to Dinesh current. Okay. अभी liability और asset का नाम लिखना ही नहीं है, याद रख. Liability asset का नाम खाली वो big journal entry में आएगा, फिर खत्म. ये liability asset का नाम use ही नहीं करना है पूरे dissolution chapter. It will be simply realization to Mahesh current to Dinesh current. Realization to Mahesh current to Dinesh current being liabilities taken over. टेक ओवर का एंट्री आप मर्ज कर सकते हो, सेल का एंट्री अलग रख. सेल का एंट्री अलग, टेक ओवर का अलग. ठीक है, पे ऑफ का एंट्री अलग, टेक ओवर का अलग. ये चार है ना, जो सेल का अलग, टेक ओवर का अलग. सेल का अलग, टेक ओवर का अलग, पे ऑफ का अलग, टेक ओवर का अलग. सेल अलग, टेक ओवर अलग, पे ऑफ अलग, टेक ओवर अलग. लिखो रियलाइजेशन टू महेश करंट टू दिनेश करंट. रियलाइजेशन में आएगा 13,400 टू महेश करंट, 10,400 टू दिनेश करंट 3,000.
liability is taken over, liability is taken over. What is your 10th entry? Asset भी हो गया, liability हो गया. What is your 10th entry? Not the last one. 10th entry. Transfer of profit to current account. Profit नहीं Transfer है of यहाँ loss पे, to current. loss है. तो क्या होगा loss का entry? Mahesh Mahesh, current, Ramesh. Ramesh current, Dinesh current to loss on realization. ना. To To realize. realization. Realization. ત્રણ તો account છે, ચોથો account આવશે. Okay. This would be Mahesh current, Ramesh current, Dinesh current to realization. Mahesh current, Ramesh current, Dinesh current to realization. Mahesh current, Ramesh current, Dinesh current to realization. 6750, 4050, 2700 and 13500 being loss on realization transferred. Loss on realization transferred. Loss on realization transferred. Got it? What next? Mahesh current to Mahesh capital. Mahesh current to Mahesh capital. Very good. Sir, 11th entry. Mahesh current to Mahesh capital. Mahesh current to Mahesh capital 17150 being, इसका नरेशन बराबर चलेगी ना, नया एंट्री है. Mahesh current to Mahesh capital 17150 being balance in Mahesh current transferred to Mahesh capital. Being balance in Mahesh current transferred to Mahesh capital. Being balance in Mahesh current transferred to Mahesh capital. फिर ये दोनों क्या लिखोगे? ये दोनों एंट्री नंबर 12 और 13 क्या? Ramesh current, Dinesh current to Ramesh capital, Dinesh capital. हाँ, ये आप मर्ज कर सकते हो. रमेश कैपिटल, दिनेश कैपिटल टू रमेश करंट टू दिनेश करंट. ओके, 12 और 13 अलग अलग करो या साथ में करो, चलेगा. नरेशन सेम होगा दोनों का. रमेश कैपिटल, रिपीट करो. लिख लो. Sir, how many journal entries are there? Can you just tell? सर पूरा जूम इन करो ना 1 मिनट. 14. Sir, I have 13 entries. Like I combined few entries. That's why. Which entry? This bank wala entry also I combined, and RDD wala entry also I have combined. बैंक वाला तो करना ही है ना. And आरडीडी वाला RDD. एक आरडीडी के वजह से तुम्हारा 13. बाकी नंबरिंग से चेक कर लो. 12th एंट्री क्या होगा बताओ मुझे. 12th एंट्री क्या होगा अभी? What will be your 12th entry? ये आप कंबाइन कर सकते हो दोनों का. क्या होगा? रमेश कैपिटल 15350, दिनेश कैपिटल 12100 टू रमेश करंट 15350 टू दिनेश करंट 12100. ओके, रमेश कैपिटल, दिनेश कैपिटल टू रमेश करंट टू दिनेश. Being balance in partners current transferred to partners capital. Being balance in partners current transferred to partners capital. Being balance in partners current transferred to partners capital. Being balance in partners current transferred to partners capital. ठीक है? Is this clear? What next? 13th one क्या होगा? 13th entry. Mahesh capital to cash bank. Mahesh capital to cash bank 42,150 being final settlement made. Being final settlement made. Mahesh capital to cash bank 42,150 being final settlement made. Being final settlement made. The last entry, that is 14th entry, क्या होगी?
will be your last entry. Cash bank to Dinesh Capital to Mahesh Capital. Mahesh, To Ramesh Capital. Ramesh and Dinesh. Cash Dinesh. bank to Ramesh Capital to Dinesh Capital. Cash bank to Ramesh to Dinesh Capital. 350, 2100 and 2450. Okay. Cash bank में 2450, 350 and 2100 in Ramesh and Dinesh. Narration is same, being final settlement made. Being final settlement made. Being final settlement made. सबसे important entries ये सब में ये दो थी, बाकी सब तो repetitive थी. ये दो entries important. ये जो मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूं, ये दो एंट्री, ये आपको समझ आई? इन दोनों का नरेशन सेम है. क्या नरेशन लिखोगे इन दोनों एंट्रीज का? 11th और 12th एंट्री. Being balance in partners current transfer to partners. Being balance in partners current transfer to partners capital. दोनों का नरेशन सेम है. बैलेंस इन पार्टनर करंट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल. बैलेंस इन पार्टनर करंट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल. 14 एंट्रीज इन ऑल. देख लो, चेक कर लो बराबर से. नथिंग फॉर होमवर्क, रिटर्न होमवर्क कुछ नहीं है. रिवाइज प्रॉपरली, प्रैक्टिस प्रॉपरली. आज नहीं है प्रैक्टिस, कल होगी क्लास में. वापस टाइमिंग डाल देता हूँ ग्रुप में. और कुछ डाउट्स है तो रुको, अभी रुको, कंप्लीट करो. अदरवाइज यू कैन. सर आप